یہ جو کہانی میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، یہ کہانی کی دوسری قسط ہے اور اس کا نام ہے نیلا طوفان۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں پلیز، اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ تم ہمیشہ سچ کو رومانوی بنا دیتے ہو، سارا نے تلخی سے کہا۔ ریاست جذبات پر نہیں چلتی اور انسان؟ سارا خاموش ہو گئی تھی۔ اب بھی تم یہی سمجھتی ہو؟ کمال نے پوچھا۔ سارا نے گہری سانس لی۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے اس دن دونوں غلطی کی تھی۔ اسی لمحے ایک نیا پیغام آیا، فرام اننون، سبجیکٹ وی نیڈ ٹو ٹاک۔ کمال مسکرایا۔ وہ آ گیا، عمران شاہ۔ وہ کبھی منظر سے غائب نہیں رہتا، کمال نے کہا، بس شکل بدلتا ہے۔ پیغام کے ساتھ ایک لوکیشن تھی۔ یہ پھندا ہے، سارا نے کہا۔ ہر سچ ایک پھندا ہوتا ہے، کمال نے جواب دیا۔ فرق یہ ہے کہ کون کس کو پکڑتا ہے۔ وزارت داخلہ میں فیصلہ ہو چکا تھا۔ اگر ہم نے نیلا طوفان کو عوامی طور پر مان لیا تو ریاست کمزور ہو جائے گی، اور اگر ہم نے نہ مانا تو سچ دشمن بن جائے گا۔ انٹیلیجنس چیف نے آہستہ کہا، سر شاید ہمیں کمال فریدی کو شامل کرنا چاہیے۔ وزارت داخلہ نے تلخی سے ہنسا۔ ہم ایک بغاوت کو دعوت دیں یا شاید اسے روکیں؟ کمال اور سارا لوکیشن پر پہنچے۔ یہ ایک نیم تعمیر شدہ فلائی اوور تھا، شہر کے بیچ مگر سب سے الگ۔ عمران شاہ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ آپ دونوں ہمیشہ وقت پر آ جاتے ہیں، خاص طور پر جب وقت ختم ہو رہا ہو۔ بولے، کمال نے کہا۔ آپ کس طرف ہیں؟ عمران نے کندھے اچکائے۔ میں ہمیشہ جیتنے والی طرف ہوتا ہوں۔ اور وہ کون سی ہے؟ سارا نے پوچھا۔ عمران نے نیچے جلتے شہر کی طرف دیکھا، جو سچ کو کنٹرول کرے۔ ریاست تمہیں قربانی بنانا چاہتی ہے، عمران نے کہا، اور میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ کس قیمت پر؟ کمال نے پوچھا۔ سچ میرے حوالے کرو، عمران نے کہا، میں اسے وہ شکل دوں گا جو قابل قبول ہو۔ سارا نے تلخی سے کہا، یعنی جھوٹ، یعنی سیاست؟ عمران نے مسکرا کر جواب دیا۔ کمال نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہم نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ مسئلہ نیلا طوفان ہے، مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم طاقت سے سچ چھین کر اسے اخلاقیات پہنا دیتے ہیں۔ وہ عمران کی طرف مڑا۔ میں تمہیں سچ نہیں دوں گا۔ عمران کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ پھر تم مر جاؤ گے۔ ممکن ہے، کمال نے کہا، مگر جھوٹ زندہ نہیں رہے گا۔ اسی لمحے دور کہیں سائرن بجے۔ ریاست حرکت میں آ چکی تھی۔ سچ، اقتدار اور بقا تینوں آمنے سامنے تھے، اور نیلا طوفان اب صرف ایک ہتھیار نہیں تھا، یہ ایک سوال بن چکا تھا۔ صبح نہیں ہوئی تھی، مگر شہر جاگ چکا تھا۔ سورج افق کے پیچھے کہیں معطل تھا، جیسے وہ بھی فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ اس دن کو دیکھنا چاہیے یا نہیں۔ سڑکوں پر فوجی گاڑیاں تھیں، ہر چوک پر بندوقیں، ہر دیوار پر حکم نامے، اور ہر اسکرین پر ایک ہی جملہ، ملک دشمن عناصر کے خلاف فیصلہ کن کارروائی جاری ہے۔ یہ اعلان تھا، اور یہ دھمکی بھی۔ ریاست حرکت میں آتی ہے۔ وزارت داخلہ کے بریفنگ روم میں اب خاموشی نہیں تھی، یہ وہ خاموشی تھی جو چیختی ہے۔ وزیر داخلہ کامران لطیف نے فائل بند کی۔ کمال فریدی، اس نے آہستہ کہا، اس ملک کا سب سے خطرناک آدمی بن چکا ہے، یا سب سے ضروری؟ انٹیلیجنس چیف نے جواب دیا۔ ضروری لوگ تاریخ میں نہیں رہتے، وزیر نے سرد لہجے میں کہا، وہ مسائل حل ہو جانے کے بعد ختم کر دیے جاتے ہیں۔ ایک افسر نے آگے بڑھ کر کہا، سر، عوامی رد عمل بڑھ رہا ہے، سوشل میڈیا کنٹرول میں نہیں، تو بند کر دو، وزیر نے کہا۔ نیٹ ورک، چینلز، سب کچھ۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد حکم جاری ہو چکا تھا، ڈیجیٹل ایمرجنسی۔ شہر پر خاموش قبضہ۔ کمال فریدی نے پرانی لائبریری کی چھت سے شہر کو دیکھا۔ فوجی ٹرک، پولیس کی لائنیں، آنسو گیس کے شیل اور ہیلی کاپٹر، یہ سب کسی باہری دشمن کے لیے نہیں تھا، یہ سب اپنے ہی لوگوں کے لیے تھا۔ یہ کریک ڈاؤن نہیں، کمال نے کہا، یہ خوف کی ریہرسل ہے۔ سارا اس کے پاس کھڑی تھی۔ ریاست کو لگتا ہے کہ اگر لوگ سچ سن لیں گے تو سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ ریاست ہمیشہ یہی سمجھتی ہے کہ وہ نظام ہے، حالانکہ وہ صرف منتظم ہوتی ہے۔ ٹی وی اسکرین پر ایک اینکر چیخ رہا تھا، یہ سب غیر ملکی سازش ہے، کمال فریدی جیسے عناصر ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ نیچے سرخ پٹی چل رہی تھی، ملک دشمن ایجنڈا بے نقاب۔ سارا نے چینل بدل دیا۔
हर चैनल एक ही कहानी, एक ही जुबान, एक ही दुश्मन। ये नीला तूफान का सॉफ्ट वर्जन है, सारा ने कहा। खौफ, गुस्सा और कौम परस्ती सब एक फ्रीक्वेंसी पर है। कमाल ने सर हिलाया। डॉक्टर हारिस ने ये सब बरसों पहले सोच लिया था। रात होते ही शहर बदल गया, दरवाजे तोड़े गए, लोग उठाए गए, नामों की फहरिस्तें थी, सहाफी, असातिज़ा, तुलबा, मजदूर। ये लोग खतरनाक नहीं, सारा ने कहा, ये सवाल पूछते हैं। कमाल ने मुट्ठियां भींची और रियासत सवालों से ज्यादा किसी चीज से नहीं डरती। इसी रात एक नाम पहली बार अवामी नारा बना, कमाल फरीदी कहाँ है। ये बगावत किसी मंसूबे से शुरू नहीं हुई, ये किसी लीडर के हुक्म से नहीं उठी, ये एक वीडियो से शुरू हुई। एक आम शहरी मोबाइल हाथ में चीख रहा था, अगर सच बोलना जुर्म है तो हम सब मुजरिम हैं। वीडियो वायरल हो गई, रुकावटों के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद, और फिर लोग निकल आए। पहले 10, फिर 100, फिर 1000। आंखों में आंसू गैस, हाथों में प्ले कार्ड, सामने ढाले और बंदूकें। एक नौजवान लड़की चीख कर बोली, हम दुश्मन नहीं हैं। जवाब में लाठी उठी। ये लम्हा फैसला कुन था। कमाल फरीदी ने ये सब लाइव फीड पर देखा। ये वो लम्हा है, उसने कहा, जहां रियासत या पीछे हटती है या टूटती है। सारा खामोश बैठी थी। अगर हमने नीला तूफान का डेटा रिलीज किया, उसने कहा, तो मार्केट्स बैठ जाएंगी, इदारे हिल जाएंगे। और अगर ना किया, कमाल ने पूछा, तो ये लोग मरते रहेंगे। सारा ने बाहर सड़क की तरफ देखा। उसकी आवाज टूट गई। मैंने हमेशा सिस्टम को बचाने की कोशिश की, इंसानों की कीमत पर। कमाल ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। अब इंसानों को चुन लो। वजारत दाखिला में हंगामी मीटिंग थी। फायर ऑर्डर? एक अफसर ने पूछा। वजारत दाखिला ने आंखें बंद की। अगर रियासत न बचे, उसने कहा, तो कानून का कोई मतलब नहीं। और यूं हुक्म जारी हुआ, खून और खामोशी। पहली गोली फजा में चली, दूसरी जमीन पर, तीसरी किसी के सीने में, और फिर शहर चीख उठा। ये वो लम्हा था जहां खौफ ने वफादारी बदल ली। लोग पीछे नहीं हटे, वो आगे बढ़े। अब या कभी नहीं, कमाल ने कहा। सारा ने सर हिलाया। उन्होंने फाइल अपलोड की। साइंस, सियासी मुआहिदे, खुफिया फंडिंग, नाम, सब कुछ। जब सच आया तो शोर खामोश हो गया। लोगों ने पढ़ा, समझा, और फिर गुस्सा आया। ये बगावत अब जज्बाती नहीं रही थी, ये बाशऊर हो चुकी थी। फौज के अंदर सवाल उठने लगे। अफसरान ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया। पुलिस ने हेलमेट उतार दिए। रियासत यकसा नहीं रही थी। कमाल फरीदी हुजूम के सामने खड़ा था, बगैर माइक, बगैर नारे। मैं लीडर नहीं हूं, उसने कहा। मैं सिर्फ वो आदमी हूं जिसने झूठ को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं किया। हुजूम खामोश था। अगर आज हम पीछे हटे तो कल कोई और नीला तूफान आएगा। खामोशी के बाद एक नारा उभरा, फिर हजारों। रियासत कांप गई। ये बगावत इनकलाब नहीं थी, ये आगाज था। नीला तूफान अब राज नहीं रहा था, और रियासत अब अपने ही अवाम के सामने खड़ी थी। वो वापस आ चुका था। ये खबर किसी सरकारी ऐलान, किसी न्यूज ब्रेकिंग या किसी खुफिया ब्रीफिंग से नहीं आई थी। ये एक आवाज के जरिए आई थी, साफ, पुरएतमाद और हद से ज्यादा पुरसुकून। वो आवाज हर उस स्क्रीन पर गूंजी जो अभी तक बंद नहीं की जा सकी थी। अगर आप ये सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि नीला तूफान नाकाम नहीं हुआ, बल्कि वो मरहला बदल चुका है। शहर जो अभी चंद घंटे पहले नारे लगा रहा था, अचानक खामोश हो गया। नाम स्क्रीन पर उभरा, डॉक्टर हारिस अली, मुर्दा जो जिंदा था। कमाल फरीदी ने इस स्क्रीन को देखा तो पहली बार उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, वो थकान थी, वो पहचान थी, वो अधूरा हिसाब था। वो वाकई मरने वालों में से नहीं था, कमाल ने आहिस्ता कहा। सारा उसके पास खड़ी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा था ना, उसकी आवाज भर आ गई। कुछ लोग नजरियात की वजह से नहीं मरते। स्क्रीन पर डॉक्टर हारिस का चेहरा उभरा, सफेद बाल, गहरी आंखें, चेहरे पर बीमारी या कमजोरी का कोई निशान नहीं, बल्कि अजीब सा सुकून। मैं जानता हूँ, वो बोला, आप में से बहुत से लोग मुझे विलेन समझते हैं और कुछ खुदा। हल्की सी मुस्कुराहट, दोनों गलत है। वजारत दिफा, दाखिला, इत्तलात, सब जगह एक ही हंगामा था। ये मुमकिन कैसे है? वजीर आजम ने मेज पर हाथ मारा।
हमने इसकी मौत की तस्दीक की थी। इंटेलिजेंस चीफ की आवाज धीमी थी। सर, हमने इसकी मौत को काबिल यकीन बनाया था, तस्दीक कभी मकसद नहीं थी। कमरे में खामोशी छा गई। मैंने नीला तूफान ताकत के लिए नहीं बनाया था, हारिस की आवाज गूंजी। मैंने इसे मसले के हल के लिए बनाया था। स्क्रीन पर ग्राफ उभरे, जंगे, कहत, इंतहा पसंदी, मुआशी अदम मसावात, इन सब की जड़ एक है, हारिस ने कहा। इंसान का आजाद फैसला बगैर शऊर के। कमाल के जबड़े सख्त हो गए। यही जगह है जहां वो खतरनाक हो जाता है, उसने कहा। स्क्रीन बदली, एक पुरानी लैब की फुटेज। सारा कई साल जवान हारिस के साथ खड़ी थी। तुम्हें लगता है इंसान को आजादी चाहिए? हारिस ने उस वक्त पूछा था। हाँ, सारा ने जवाब दिया था, गलतियों के साथ भी। हारिस मुस्कुराया था। गलतियां तब काबिल कबूल होती हैं जब कीमत कम हो। अब कीमत दुनिया है। सारा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसी दिन उससे इख्तिलाफ किया था, उसने कमाल से कहा, और उसी दिन उसने मुझे मुंतखब किया था। नीला तूफान लोगों को गुलाम नहीं बनाता, हारिस ने कहा। ये उन्हें दुरुस्त इंतखाब की तरफ धकेलता है। ये तय कौन करेगा कि दुरुस्त क्या है? कमाल ने बड़बड़ाया, जैसे जवाब सुन लिया हो। वो जो मुकम्मल तस्वीर देख सकता है, हारिस की आवाज आई। रियासतें नहीं, अवाम नहीं, सिर्फ वो जो जज्बात से आजाद हो। शहर में बहस शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग हारिस के हक में थे। कम से कम ये ईमानदार है। हमारी आजादी ने हमें क्या दिया? शायद कंट्रोल ही बेहतर है। ये सब नीला तूफान का असल खतरा था। ये बंदूक नहीं था, ये दलील थी। कमाल स्क्रीन के सामने आया। डॉक्टर साहब, उसने बुलंद आवाज में कहा, आप इंसान को डेटा समझते हैं, लेकिन इंसान मसला नहीं, गलतियां इंसान बनाती हैं। स्क्रीन पर खामोशी छा गई। फिर हारिस मुस्कुराया, और यही रोमान तुम्हें खतरनाक बनाता है कमाल फरीदी। लोकेशन खुद ब खुद ऑन हो गई। एक पुरानी ऑब्जर्वेटरी, शहर से बाहर। वो हमें बुला रहा है, सारा ने कहा। या फैसले के लिए, कमाल ने जवाब दिया। रात, खुला आसमान, टूटा हुआ गुंबद। डॉक्टर हारिस खुद वहां मौजूद था, जिंदा, हकीकी। खुशामदीद, उसने कहा, मेरे आखिरी तजर्बे में। मैं तुम्हें नीला तूफान बंद करने का मौका दे रहा हूं, मगर एक शर्त पर। क्या? सारा ने पूछा। तुम मान लो कि इंसान खुद को संभालने के काबिल नहीं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे प्लीज, इससे हमें हौसला मिलता है। कमाल आगे बढ़ा। और अगर हम ना माने तो? हारिस ने आसमान की तरफ इशारा किया। तो दुनिया मान लेगी। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, सारा ने हारिस से कहा। मैंने बस उम्मीद की थी कि तुम रुक जाओगे, हारिस ने नरमी से कहा। और मैंने उम्मीद की थी कि तुम समझ जाओगी। कमाल ने कंसोल पर हाथ रखा। तुम नीला तूफान इंसानों को बचाने के लिए नहीं बना रहे, उसने कहा। तुम उसे खुदा बनने के लिए बना रहे हो। हारिस की आंखों में पहली बार गुस्सा आया। खुदा भी तो नज्म चाहता है, वो बोला। कमाल ने बटन दबा दिया। सिस्टम लरज गया। नीला तूफान रुक गया। मगर सवाल बाकी था, क्या इंसान वाकई खुद को संभाल सकता है? डॉक्टर हारिस अंधेरे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये आखिरी दलील नहीं थी, वो बोला। ये पहला सवाल था। नीला तूफान रुक चुका था, कम से कम स्क्रीनों पर तो यही लिखा था। सिस्टम्स खामोश थे, सर्वर्स ऑफलाइन, और वो फ्रीक्वेंसी जो शहरों के मिजाज बदल रही थी अब सुनाई नहीं देती थी। मगर खामोशी हमेशा अमन की अलामत नहीं होती। कभी कभी ये सिर्फ इस बात का ऐलान होती है कि फैसला हो चुका है। ऑब्जर्वेटरी के गुंबद के नीचे 3 लोग खड़े थे, कमाल फरीदी, सारा और डॉक्टर हारिस। आसमान साफ था, सितारे वाज़ेह, इतने वाज़ेह कि इंसान को अपनी हैसियत छोटी लगने लगे। तुमने सिस्टम रोक दिया है, डॉक्टर हारिस ने कहा, मगर नजरिया नहीं। कमाल ने जवाब नहीं दिया। वो जानता था ये बहस जीतने की नहीं, बर्दाश्त करने की थी। सारा ने कंसोल से हाथ हटाया। अब क्या होगा? उसने आहिस्ता पूछा। डॉक्टर हारिस ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। अब दुनिया वही करेगी जो वो हमेशा करती है, या तो खुद को साबित करेगी या मुझे। सुबह सूरज के साथ आई। ये आम सी बात है, मगर उस दिन सूरज कुछ और लग रहा था। शायद इसलिए कि शहर ने पहली बार रात खौफ में नहीं गुजारी थी। रियासत ने हंगामी इख्तियारात वापस लेना शुरू किए। क्रैकडाउन रुका, कैदी रहा हुए, और सबसे अहम, खामोशी टूटी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पहली बार नीला तूफान का नाम खुलेआम लिया गया। वजीर आजम ने वो जुमला कहा जो किसी तकरीर नवीस ने नहीं लिखा था।
रियासत गलती कर सकती है और जब करे तो उसे मानना चाहिए। ये जुमला तारीख में दर्ज हो गया। डॉक्टर हारिस को अदालत में पेश किया गया। वो भागा नहीं था, वो छुपा नहीं था, वो कुर्सी पर बैठा था, सीधा, पुरसुकून। आप इंसानों पर भरोसा नहीं करते, जज ने कहा। मैंने इंसानों को देखा है और आज पहली बार मैं मान रहा हूं कि मैंने एक पहलू कम देखा था। अदालत खामोश थी। ये कि इंसान सीख सकता है अगर उसे मौका दिया जाए। ये एतराफ नहीं था, ये पसपाई थी। सारा ने नीला तूफान का सारा डेटा ओपन सोर्स कर दिया। यूनिवर्सिटियां, मुहक्किकीन, तलबा सब इस पर काम करने लगे, कंट्रोल के लिए नहीं बल्कि समझ के लिए। वो पहली बार किसी खुफिया लैब में नहीं थी, वो एक क्लासरूम में थी। इल्म ताकत नहीं होता, उसने तलबा से कहा, यह जिम्मेदारी होता है। कमाल ने कोई ओहदा कबूल नहीं किया, कोई पार्टी, कोई मनसब, कोई स्टेज। वो सिर्फ लिखता रहा, सच, शक और इंसान की कमजोरियों पर। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, क्या आप हीरो हैं? वो मुस्कुराया, नहीं, मैं बस वो आदमी हूं जिसने ये मानने से इनकार कर दिया कि हमें कंट्रोल की जरूरत है। एक बच्चा सड़क पर सवाल पूछ रहा था, किसी ने उसे चुप नहीं कराया। किसी ने कहा, पूछो, यही आजादी है। नीला तूफान का इख्तिताम हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगली वीडियो वक्त पर हासिल करने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज, इससे हमें हौसला मिलता है।